In the name of Allah, the most beneficent, merciful and beneficent. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم. May Lord explain for me with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that may understand my word, my speech. Today's Chief Guest, Honorable Lieutenant Governor UT Ladakh, His Excellency Shri Kavinder Gupta ji. Guest of honor, Honorable CEC Chairman LHDC Kargil Dr. Mohammad Jafar Akhund, and Honorable Member of Parliament UT Ladakh Haji Hanifa Jan, were the Chief Secretary UT Ladakh Dr. Pawan Kotwal ji, Honorable Executive Councillors Ladakh Autonomous Development Council Kargil, special guest Worthy Deputy Commissioner Kargil Shri Rakesh Kumar IAS, Worthy SSP Kargil Shri Ram IPS, Additional Deputy Commissioner Kargil Imtiaz Hussain Kachu, President Jamiatul Ulama Asna Shri Hujjatul Islam Al Muslimin Sheikh Nazir Al Mahdi Muhammadi, distinguished doctors from Yatharth Super Speciality Hospital, Noida Extension, Dr. Pawan Kumar Singh, Group Director, Hemato-Oncology and Bone Marrow Transplant, Yatharth Super Speciality Hospital, Noida Extension, Delhi NCR. Dr. Kanush Malik, Senior Consultant, Surgical Oncology, Yatharth Speciality Hospital, Noida Extension, New Delhi NCR. The son of soil, Captain Mohammad Hussain, Commander Boeing 77, respected Chief Medical Officer, District Hospital, District Kargil, Medical Superintendent, District Hospital Kargil, Senior Consultants, my colleague doctors, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, Namaskar, Chule, and very, very warm welcome to one and all. It is indeed a moment of pride and gratitude to witness such esteemed personalities among us in this inaugural ceremony of cancer screening and awareness camp by Al Riza Healthcare and Research Foundation in collaboration with Yatharth Group of Multi-Speciality Hospital, Noida Extension NCR, New Delhi and District Hospital Kargil. कुछ बात है कि हस्ती मटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान व मिस्ल रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान व मिस्ल रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा. To commence this auspicious occasion, let's all rise for national anthem, a symbol of our unity and pride. Please stand up for your respective seats for national anthem. Before we proceed, let us pay our heartfelt tribute to the noble soul, Dr. Stanzin Namgyal, ex-medical superintendent Kargil, who left us recently. Let us all observe a moment of silence in his remembrance. Please stand up on your respective seat for the moment of silence for 1 minute, please. Thank you. In the memory of. Thank you. Thank you all. Thank you all. Dr. Stanzin served as a
medical district tuberculosis officer, and medical superintendent district hospital Kargil. He was very noble, very humble, very gentle, and very dedicated. His services will remember for a long time. चिराग जिसने जलाया वो रोशनी दे गया, चिराग जिसने जलाया वो रोशनी दे गया, खुद तो चला गया मगर ज़िंदगी दे गया, खुद तो चला गया मगर ज़िंदगी दे गया. May Almighty bless his soul with eternal peace. इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगी मौलाना शाकिरी कि वो यहाँ आके तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज़ करें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صدق الله العلي العظيم. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जिसने मुझे पैदा किया फिर वही मुझे राह दिखाता है, और वो जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शफा देता है, और वही मुझे मौत देगा फिर मुझे ज़िंदगी अता करेगा, और वो जो मुझे उम्मीद है कि मेरे गुनाह क़यामत के दिन मुझे बख्श देगा. ए मेरे रब, मुझे कमाल इल्म अता फरमा और मुझे नेकों के साथ शामिल कर. सच फरमाया अल्लाह ने जो बुलंद मर्तबा और अजीम है. थैंक यू मौलाना शायरी साहब, बहुत खूबसूरत तिलावत कलाम पाक के लिए. दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ. नाउ I request Vice President Al-Riza Healthcare and Research Foundation, Dr. Zahra Banu, to come to the dais and deliver your welcome address and extend heartfelt greetings to our guests. Thank you, ma'am. Please come forward. Bismillahirrahmanirrahim. A warm good morning, one and all. It is my profound honor and privilege to extend a heartfelt welcome
to our chief guest, the esteemed Honorable Lieutenant Governor of UT Ladakh, Shri Kavindra Gupta ji. Sir, your presence here today bestows immense prestige upon this noble initiative and serves as a tremendous source of motivation for all of us in the health sector. We are truly grateful you have taken the time to grace this occasion. We are equally delighted to welcome our guest of honor, Dr. Muhammad Jafar Akhund, Chief Executive Councillor, LHDC Kargil, Haji Hanifa Jan, Honorable Member of Parliament, UT Ladakh, worthy Chief Secretary, Dr. Pawan Kotwal, UT Ladakh, ex-executive councillors and councillors, LHDC Kargil, our special guest, worthy Deputy Commissioner, Shri Rakesh Kumar, Additional Deputy Commissioner, Kacho Imtiaz, SSP Kargil, Shri Ram and Hujjatul Islam wal Muslimin, President Jamaatul Ulama Isna Ashariya Kargil, Sheikh Nazir al-Mahdi Muhammadi. Your support and presence significantly amplify the impact of our mission today. I would like to warmly welcome cancer specialists and experts, Yatharth Super Speciality Hospital, Noida Extension, Delhi, led by Dr. Pawan Kumar Singh, Group Director, Hemato-Oncology and Bone Marrow Transplant, Dr. Kanuj Malik, Senior Consultant, Oncosurgery, Chief Medical Officer, our Medical Superintendent, District Officials, esteemed guests, medical colleagues, senior doctors, all volunteers of Al-Raza Healthcare and Research Foundation Kargil. मैं डॉक्टर जोहरा, वाइस प्रेसिडेंट Al-Raza Healthcare and Research Foundation कारगिल, जो कि हेल्थ विंग है हमारे इस्लामिया स्कूल का, तो मैं आप सबको इस मौके पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग और आगाही, हम सब यहाँ एक निहायत अहम मकसद के लिए जमा हुए हैं। ये इक़दाम यथार्थ हॉस्पिटल के इस अज़म का मज़हर है कि वो अपनी खिदमत को हॉस्पिटल के चार दीवारी से निकलकर दूर दराज इलाकों तक पहुँचाए हैं। एक तिबी इदारे के तौर पर हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हम इस अजीम मुहिम को करगिल में लेकर आए हैं। कैंसर की हर वक्त तशख़ीस सिर्फ एक तिबी हिकमत अमली नहीं, बल्कि ये एक ज़िंदगी की ज़मानत है। ये ख़ानदानों को बचाते हैं, उम्मीद को जन्म देती है और एक सेहतमंद माशरा तश्कील देती है। इस स्कीम के ज़रिए जहां जदीद स्क्रीनिंग और सहूलियात और माहिर डॉक्टरों के मुशावरत मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम की जा रही है, हमारा मकसद हर फ़र्द को आगाही और सहूलत से बाख्तियार बनाना है, क्योंकि हम समझते हैं कि मेयारी सेहत की सहूलत कोई मराहत नहीं, बल्कि हर इंसान के बुनियादी हक है। सर, ये आपके नोटिस में हम देना चाहते हैं कि हम अपने लेवल पर जो स्क्रीनिंग है सी सर्विक्स या स्टमक कैंसर्स या बाकी कैंसर्स के लिए, तो हम रिपीटेडली सी सर्विस के लिए पैप स्मीयर करते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी जो अभी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, तो हम इनके ज़रिए स्क्रीनिंग करते हैं। वंस अगेन
A resounding thank you to our Honorable Lieutenant Governor Shri Kavinder Gupta ji, our guest of honor, special guest, and all of our dignitaries for joining us. Your presence energizes our resolve to fight this battle against cancer collectively. Thank you all. Thank you, Dr. Zahra. Culture is the heartbeat of every community. To add colors of tradition to today's gathering, we now present shawl to our esteemed guests. I would request Janab Sheikh Nazirul Mehdi Mohammadi, President Jamiatul Ulama Isniya Sharia Kargil, to felicitate our Honorable Lieutenant Governor Shri Kavinder Gupta ji with shawl. Thank you, sir. I would request Janab Nazirul Mehdi to present our Honorable Chief Secretary, Dr. Pawan Kotwal. Member of Parliament, Shri Hanifa Jan. And Chief Executive Councillor, Dr. Jafar Ali. Please present shawl to Chief Member of Parliament, Shri Hanifa Jan. Thank you, sir. Now I would request Dr. Kachol Liaquat, Chief Medical Officer, to felicitate our guest, Chief Executive Councillor, Dr. Jafar Apon. Thank you, sir. I would request Dr. Abbas, Medical Superintendent, to present shawl to our guests, Dr. Pawan Kumar Singh and Dr. Kanuj Malik. ख्वाहिश से नहीं गिरता फल जोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरता फल जोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। I would like to request Dr. Muhammad Abbas, President Al-Riza Healthcare and Research Foundation, to present his speech for the introduction of Al-Riza Healthcare and Research Foundation, its goal, aims and objectives. Dr. Abbas, you please come forward to present your lecture. Please come on the dais. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today's chief guest, Honorable Lieutenant Governor UT Ladakh, Shri Kavinder Gupta ji. Then guest of honor, Honorable CC LGC Kargil, Dr. Muhammad Jafar Afon sir. Honorable Member of Parliament, Haji Hanifa Jan sir. Then we have special guest, Chief Secretary UT Ladakh, Dr. Pawan Kotwal sir. Worthy Deputy Commissioner Shri Rakesh Kumar IAS sir. SSCB Kargil Shri Ram, and Additional Deputy Commissioner Kachu Imtiaz sir. District officers, my dear colleagues and audience, Assalamu alaikum. Very warm good morning and namaskar to all the guests. Introduction of Al-Riza Healthcare and Research Foundation Kargil, which is a health wing of Jamiatul Ulama Isniya Sharia Kargil, which was established in 2017 as a health wing. It's a non-profit, community-oriented organization dedicated to improving healthcare access and outcomes in Ladakh, especially in remote and underserved areas of Kargil. We started with a vision to build a healthier society where quality healthcare is accessible to every individual, regardless of geography, social status, or economic background, with a mission to
to organize free and affordable health services, including specialty and super specialty medical camps, to support hospitals and healthcare facilities with advanced medical equipments, ambulance services and trained professionals, to raise awareness on preventive health, mental well-being and lifestyle diseases, to promote research, training and collaboration in the field of medicine and public health. With the key activities like conducting free medical camps in the form of eye camps annually, where free eye checkups and free cataract surgeries are done every year. We have a collaboration with AG Eye Hospital, Srinagar. So we are doing cataract surgeries, 50 to 60 patients every year, free of cost. Is a part of National Blindness Control Program. So at the same time, we have started introduced this laparoscopic surgery here at the District Hospital Kargil. We are the organization. We introduced minimal invasive surgeries through our camps here at District Hospital Kargil, and the general surgeons of District Hospital Kargil, they are doing laparoscopic procedures here routinely in the service of public. So we are the one to start neurosurgical procedures here at District Hospital Kargil through our camps. Our neurosurgeon, renowned Valley neurosurgeon Dr. Basharat Khan, who frequently visits here through our camps to do these neurosurgical procedures like spinal surgeries, and we started here, and he is doing frequently through our camps these neurosurgical cases here at District Hospital Kargil. And also we have international collaborations with many hospitals like Prime Hospital Dubai, and we are doing total knee replacement surgeries here by renowned world famous Dr. Azam Badr Khan from Dubai, and through our camps we are doing total knee replacement camps here. And also we have an association with his NGO, Let's Walk Again. So we have also renowned this gynecological specialist, Dr. Usha Kiran from Mumbai. He's based in Dubai. She's based in Dubai, and she frequently visits here through our camps to do complex gynecological surgeries and laparoscopic surgeries in gynae here at District Hospital Kargil, so that our gynecologists here at District Hospital should be trained in laparoscopic surgery. So directly and indirectly we can do service in the form of laparoscopic gynecological surgery for the people of Kargil. So we are also organizing multi-specialty camps in remote areas of District Kargil. Some villages are still not motorable, and we started our mission. First came in Ichu, which is far away from here, from the headquarters, and we started this multi-specialty camp with free checkups and free distribution of medicines at Ichu, this village, and also Mushko and Batambis and other far-flung areas. And we have also recently conducted multi-specialty camps at Zanskar. So at the same time, we have collaboration with various hospitals in Valley, Jammu and Kashmir, like this Medicare Hospital, Sheikh Al-Alam Hospitals, Amandeep Hospitals and Paras Hospitals, and these super specialists are frequently coming here for giving service to the people of Kargil through super specialty care, because we don't have super specialties facilities available here. So we are also doing community health service in the form of free consultations, free checkups and diagnostics and treatment of the underprivileged society of our district. So we also healthcare support in the form of providing oxygen concentrators, ambulance services and essential equipment to hospitals, particularly during emergencies, natural disasters like COVID-19 pandemic. Our doctors and volunteers, they stood forefront with the administration to fight with this disease, and also we provided at the same time to district administration
various accessories like oxygen masks, we have oxygen concentrators, ambulance services for the people of those patients, at that time COVID patients. And also we did awareness camps during this COVID disaster time. And also we have a wing of disaster management, this rescue team, which also this works in any kind of natural disasters like earthquake and other natural disasters. So we are providing awareness in education on public lectures in the form of public lectures, workshops, and outreach programs on physical and mental health. Like in this camp, we are associating with Yatharth Super Specialty Hospital, Noida Extension, which is renowned, which has chains of hospitals and with renowned doctors, super specialist doctors, which only deals with this special diseases like oncosurgery, medical oncologists, like hemato-oncology and other super specialists like urology, gastro, cardiology. So we have just set up this satellite clinic here at the office of Al-Riza yesterday. So through which there will be virtual checkups of the patients from district Kargil. So with the experts, and we can go for a early intervention for these patients. So at the same time, we are also with under the patronage of our President Jamiatul Ulama Isnai Sharia Kargil, Hujjat Islam Sheikh Nazirul Mehdi. We are also providing financial assistance in the form of checks, monetary helps for those patients who needs referral to higher centers, to J&K schemes are outside the state. So till now, approximately 75 to 80 lakhs rupees have been given to these patients for those needy patients who cannot afford to take the expenditures. So we have the impact of this NGO on the public and social field. Like since its inception, Al-Riza Healthcare Research Foundation has served thousands of patients through free healthcare initiatives, from cataract surgeries to advanced laparoscopic operations, from many super specialty consultations like psychiatry consultations, pulmonology consultations, gynecological care. The foundation has bridged gaps in healthcare delivery and created hope for communities living in difficult terrains. Under the leadership of our patronage, Jamiatul Ulama Isnai Sharia Kargil, Sheikh Nazirul Mehdi. And once again, here then I would like to thank all the dignitaries, all the chief guests and guests of honor to attend this program. Thank you so much. Thank you, Dr. Abbas, for your nice presentation. ये निहायत ही खुशी का मुकाम है, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन कोलैबोरेशन विद अल-रिज़ा हेल्थ केयर रिसर्च फाउंडेशन ने कल एक यानी कि वैसे तो इस नौयत का कैंप जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहली बार हो रहा है कैंसर से रिलेटेड, जिसमें कैंसर की स्क्रीनिंग, लोगों को कैंसर के बारे में आगाही देना, उनको अवेयर करना, और साथ में इस फंक्शन के बाद यहाँ पे क्लिनिक्स लगेंगे जिसमें कैंसर की स्क्रीनिंग, खासकर सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग किया जाएगा। और साथ में कल इनकलाब मंजिल में अल-रिज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के ऑफिस में सैटेलाइट कैंसर क्लिनिक का सेटअप किया हुआ है, जिसका फॉर्मल इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल CC डॉक्टर जाफर आखून एंड ऑनरेबल MP लता मिस्टर हाजी हनीफा जान के हाथों शुभारंभ हुआ है। तो जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी, जैसे मैं बताते चलूँ कि एक सिंपली जिनका खून बहुत कम होता है, 6, 7, 8 रहते हैं एनीमिया, वो भी तो कैंसर ही है, हो सकता है ब्लड कैंसर हो उसको। तो ऐसे में अगर वो ट्रांसप्लांट के लिए जाए तो उनका 10 लाख 20 लाख का खर्चा है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे डॉक्टर साहिबान ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से तशरीफ़ ला के डोर स्टेप पे आके हमें ये अवेयरनेस दे रहे हैं। और इन फ्यूचर उनके कोलैबोरेशन से हम ऐसे बच्चे हैं थैलेसीमिया के होते हैं, जैसे एनीमिया, ब्लड कैंसर और भी बहुत सारे कैंसर रिलेटेड, कोई किसी भी कैंसर का ऑपरेशन हो, ऑन्कोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, सर्जरी हो, ये सब संभव हो पाएगा। तो हमें निहायत खुशी है
कि इस तरह से एक टेली कम्युनिकेशन सेंटर का या टेली मेडिसिन का सेंटर का एक सेटअप हमारे यहाँ पे हुआ है। तो इन फ्यूचर पेशेंट्स का उनके साथ हम राबिते में रहेंगे, कंटेक्ट में रहेंगे, और जो भी डायग्नोज इनका होगा तो उनसे संपर्क में रहेंगे कि उनका सही इलाज मुआवजा जो होगा हम इसकी कामना करते हैं। थैंक यू। One of the core purposes of today's program is spreading knowledge. Health is wealth, and awareness is the first step towards prevention. We now move towards a cancer awareness session, which will be presented by our distinguished medical expert. I would like to invite Dr. Pavan Kumar Singh, Group Director, Hemato-Oncology and Bone Marrow Transplant, Yatharth Super Speciality Hospital, to shed some light on today's program. And first of all, good morning. Lieutenant Governor Saab is there, Sheikh Saab is there. So basically हमारा ये कैंप जो ऑर्गेनाइज करने का रीज़न है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवेयर कर सकें अबाउट द राइजिंग कैंसर्स। खाली यही नहीं, पूरे देश में अगर हम देखते हैं तो इवन पूरे वर्ल्ड में कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा राइज पे हैं बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल्स। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने और बताने के लिए ही हमने ये कैंप शुरू किया है। और कल हमने, जैसा अभी बताया डॉक्टर साहब ने, कि कल हमने सैटेलाइट क्लिनिक भी लॉन्च किया है। सो बेसिकली क्या है, वी आर लुकिंग एट होलिस्टिक अप्रोच कि पहले कैसे हम अर्ली डायग्नोज करें, फिर उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस, उनको क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, और सारा चीज़ें सैटेलाइट क्लिनिक के थ्रू हम अरेंज करके पेशेंट्स को बता सकें। और उसके बाद में फाइनली जब ट्रीटमेंट की बात आएगी, अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने विजिट किया, फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग फैसिलिटी है। इस लोकेलिटी जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, जो सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, मतलब आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी दैट कि दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी इज़ देयर, एंड थैंक्स टू द टीम बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। सो इससे रिलेटेड हम आगे और इसको कैसे ले जा सकते हैं, और फिर अगर कुछ पेशेंट्स को जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट जिसके लिए ट्रैवल करना है, तो उसके लिए अगर वो आना चाहेंगे हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बोन मैरो, मेरा स्पेशलिटी बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड मैं एक एनजीओ का एडवाइज़र हूँ, जिसकी तरफ से जब ये कॉस्ट की जो बात हुई तो 3 लाख रुपए की मदद तो ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स को उनके लिए मिलती है। तो दैट आई कैन प्रॉमिस दैट सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड, एंड अबाउट दैट any support from the hospital administration, that also I guarantee will provide the maximum help to the patients of Ladakh and Jammu and Kashmir. Thank you. नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ती वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ती वीरां से, अगर नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ी से साक़ी, अगर नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ी से साक़ी। Now I would like to invite Honorable Chief Secretary UT Ladakh, Dr. Pavan Kotwal ji, to please come on the dais and enlighten the audience, please. Honorable Lieutenant Governor UT Ladakh, श्री कविंद्र गुप्ता जी, यहाँ पे मौजूद CCLHDC कारगिल के CC साहब डॉक्टर जाफ़र अली अखून साहब, ऑनरेबल MP श्री अनीफ़ा जान जी, रिस्पेक्टेबल श्री शेख नज़ीर जी, डिप्टी कमिश्नर लेह, SSP लेह, मेडिकल फ्रेटर्निटी से आए हुए डॉक्टर्स, स्टाफ मेंबर्स, यथार्थ फाउंडेशन से आए हुए डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सर, मैं खुद एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ और कुछ देर मैंने मेडिसिन भी प्रैक्टिस की है बिफोर आई रोट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन 93। और मैंने अपनी जो हमारी JNK रियासत उस वक़्त थी, उसका एक दूर दराज इलाका है भलेसा, तो वहाँ मैंने बहैसियत असिस्टेंट सर्जन काम किया। और जो काम उस वक़्त मैंने किया, मेरे हाथों, जैसे कहा कि बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है, वो जो रहीम है, वो जो बचाता है हमें, लेकिन उसका वो जो एक टूल होता है वो डॉक्टर होता है। सो वो कहते हैं द गॉड क्योर्स एंड द डॉक्टर अम्यूजेस। तो लेकिन आज भी मुझे वो जो पेशेंट मैंने ठीक किए
जो थोड़ी बहुत सर्जरी की। एक नौजवान था, वो पहाड़ी पे बर्फ़ के दिन थे तो वो लकड़ी लाने जाते हैं, शतीरियाँ लाने जाते हैं, लॉग्स ऑफ वुड। तो वो एक स्लिप होके, शतीरी बहुत भारी होती है, वो दूर से आई और उसकी टांग को लग गई, उसकी टांग के टुकड़े हुए, मल्टीपल फ्रैक्चर, कंपाउंड। तो वो दूर गांव था, तो वहाँ से लोग आए मेरे पास, डॉक्टर साहब आप हैं तो चलिए, वहाँ पे ऐसा हुआ है तो आप ठीक करिए उसे। मैंने कहा ये सर्जरी का मसला है, ऑर्थोपेडिक्स का मसला है, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, खैर बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी तो हूँ, सर्जरी तो मैंने सीखी है, लेकिन इतना मुश्किल काम उस कंपाउंड फ्रैक्चर को रिड्यूस करना, और ये तो उसके लिए तो पूरा एक OT चाहिए। लेकिन फिर भी वो लोग कहें, बर्फ़ के दिन थे, सड़कें बंद थी, डोडा जा नहीं सकते थे, तो वो कहने लगे जी जो भी हो अब आपको ये ठीक करना है, आप चलिए वरना वहाँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे मैं उस गांव में पहुँचा, काफ़ी 3-4 घंटे चलने के बाद, तो देखा एक बहुत बड़ी छत के ऊपर लगभग कोई 50-60 वुमन और कोई 50-60 आदमी बैठे मेरा वेट कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने दूर से देखा, मेरे साथ लोग थे, मैं आ रहा था, कहने लगे डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। वो सब उठ गए, ऐसा लगा कि बस अब तो बस सारी प्रॉब्लम हल हो गई। अब वो प्रेशर मेरे ऊपर आ गया कि ये 100-150 आदमी कह रहे हैं डॉक्टर साहब आ गए, तो अब डॉक्टर साहब को क्या करें। अब मैं अंदर गया, मैंने सोचा था कि मैं जाके देखूंगा, उनको बोलूँगा कि ये पॉसिबल नहीं है, इसको आप उठा के ले जाओ 30 किलोमीटर दूर, ठाठरी, और ठाठरी से कारगिल। मैंने कहा मैं ये करूँगा, लेकिन जब उनका वो मैंने माहौल देखा, मैंने कहा ये इम्पॉसिबल है अब यहाँ से निकलना। तो वहाँ पे जो लोकल एक होते हैं, जो जैसे फार्मासिस्ट टाइप कह सकते हैं, तो मैंने कहा यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो नौजवान था, 20-22 साल का था, तो उसकी टांग भी इतनी मोटी, मसल इतने, तो वो ऐसे निकला हुआ बाहर। लेकिन लकीली जो उसके पीछे सर ये होती है, हमारी आर्टरी होती है, आर्टरी इंटैक्ट थी। तो मैंने कहा गैंग्रीन का इशू तो चलो शुक्र है नहीं होगा, ये तो जहाँ इसका जो पाँव साइड पे पड़ा हुआ था, वो पाँव नीचे अलग हो चुका था। मैंने वो उसका रिडक्शन किया, मल्टीपल फ्रैक्चर था, मतलब मान लीजिए ऐसे रिडक्शन उसका किया, उसको जो मेरी पढ़ाई जितनी थी उतनी रिडक्शन की। और वहाँ पे मैंने देखा है गांव में वो शलफड़ी कहते हैं उसको, हम वो प्लैंक्स होते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस हैं, वो उसको रस्सी से बांधते हैं, तो उसका हमने फिर प्लास्टर, क्योंकि प्लास्टर तो था नहीं, वो शलफड़ी लगाई उसको और उसको ट्रीट किया। और मैं डॉक्टर था, मैं बाहर अपनी OPD में 3 महीने बाद बैठा था, तो एक आदमी लंगड़ा था, वो आस्ता आस्ता नौजवान, उससे 2 आदमी कहता सर ये वो है जिसको आपने ठीक किया। मैंने कहा तू बच गया? कहता हाँ सर मैं बच गया। थोड़ा सा लंगड़ाता था, रिडक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि रिडक्शन जब भी करते हैं, आप ऑर्थोपेडिक्स वाले डॉक्टर जानते हैं कि वो अलाइनमेंट के वक्त के साथ साथ फिर वो ठीक हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर का दर्जा भगवान का होता है, और जब लोग मुश्किल में होते हैं तो उसके ऊपर बहुत यकीन होता है, तो ये एक जिम्मेवारी भी डॉक्टर्स के ऊपर आ जाती है। जहाँ तक लद्दाख का जिक्र है सर, जैसा कि डॉक्टर पवन सिंह जी ने कहा कि यहाँ की फैसिलिटीज़ यहाँ के डिस्टेंस और यहाँ की आबादी के हिसाब से बहुत बेहतरीन है, और इसमें LHDCs का बहुत बड़ा योगदान है। डिपार्टमेंट, क्योंकि हेल्थ का मेरे पास भी रहा था 2-2.5 साल यहाँ, तो हमने पूरी कोशिश की कि जहाँ तक जो पैसा खरीद सकता है, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, वो तो हम दे दें। अब जो पैसा नहीं खरीद सकता वो है डॉक्टर, एक्सपर्टीज़, स्पेशलाइजेशन, उसके लिए टाइम लगता है। तो हमारी पूरी कोशिश है NHM के थ्रू, चाहे वो डॉक्टर्स को, हमारे यहाँ 275 डॉक्टर हैं सर, जिसमें से 125 की पोस्ट खाली थी। बहुत ज़्यादा लंबा 2-3 साल का वर्षा लगा, जिसमें सब जानते हैं, फिर हमारा डोमिसाइल लॉ बना, आज वो पोस्टें एडवर्टाइज हो गई हैं, और जल्दी ही ये 125 डॉक्टर जो हैं, जो मेडिकल ऑफिसर हैं, कहने को वो मेडिकल ऑफिसर हैं, MBBS हैं, लेकिन आज कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो पोस्ट ग्रेजुएट ना हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 125 के 125 जो हैं वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, कुछ 1-2 MBBS होगा। तो आपकी गायनिकोलॉजी की डिमांड, ऑर्थोपेडिशियंस की डिमांड, सर्जन्स की डिमांड, फिजिशियंस की डिमांड अपने आप पूरी हो जाएगी इन मेडिकल अफसरों की तरफ से ही। नाम से मेडिकल ऑफिसर, क्वालिफिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो ये हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल सर ये बहुत बड़ा है, अंदर से बहुत बड़ा, यहाँ 2-3 साल हमने मेहनत करके इसको जिस सिचुएशन में लाया है। यहाँ हीटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है सर, आप बिल्डिंग कितनी भी बना लें, लेकिन सर्दियों में अगर वहाँ पे -10, -15 है, तो ना पेशेंट रह सकता है, ना डॉक्टर रह सकता है, और ना उसको वो तीमारदारी हो सकती है। तो सबसे बड़ा हमारा ये चैलेंज होता है कि जैसे भी बिल्डिंग बने सेंट्रली हीटेड रहे, उसका खर्चा उठाने के लिए सब बिल्कुल तैयार हैं। पहले यहाँ पे जब मैं आया था तो नवंबर 15 से लेकर मार्च 15 तक सिर्फ
परमिशन होती थी कि आप बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं या हीटिंग कर सकते हैं, हमने उसको 1 महीना बढ़ा दिया, 1 नवंबर से एंड ऑफ मार्च। मैंने कहा यहाँ तो 8 महीने भी होना चाहिए, कभी कभी सर्दियाँ लंबी हो जाती हैं। तो सेंट्रली हीटिंग सर, अब हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं सभी सेंट्रली हीटेड हैं और उसका खर्चा हम उठा रहे हैं, सरकार उठा रही है। तो सेंट्रली हीटेड हो, अच्छी एकोमोडेशन हो, डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन अच्छी हो, इनकी इन सर्विस ट्रेनिंग्स हो, ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ जो बेहतरीन सर, वो तो मैं आप खुद अनाउंस करें तो हमें अच्छा लगेगा, इनकी बहुत देरी में डिमांड थी कि इक्विपमेंट हाईएस्ट क्लास का होना चाहिए, तो इक्विपमेंट भी हाईएस्ट क्लास का हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी सर कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो यथार्थ हैं या और दूसरे लोग हैं तो सर सब, अब डॉक्टर जो वैद्य भी होता है उसका काम तो लोगों को ठीक करना, मगर सब के पीछे एक सिस्टम रहता है। तो ये लोग जो है यहाँ आए हैं, इसको ये हमें स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हमें इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं इनके। मैं सब जो यहाँ लोग बैठे हैं उनको एक बार फिर से कहना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी स्कीम शुरू की है। जब अब ये स्कीम शुरू हुई थी सर, उस वक्त तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि एक 5 लाख का कवरेज, हेल्थ कवरेज वर्ल्ड में कहीं भी इतने ज़्यादा 50 करोड़ लोगों को किसी मुल्क ने दिया हो। आज की डेट में हमारे लद्दाख में हर आदमी के पास गोल्डन कार्ड है, हर आदमी 5 लाख रुपए का उसको इंश्योरेंस है। और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि सबको 5 लाख से ऊपर पर फैमिली खर्चा अगर होगा तब अलग बात है, लेकिन 5 लाख तक जो है वो हम देंगे। हमारा ट्रस्ट मॉडल है। अब तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई आदमी को पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, इंश्योरेंस कंपनी टाइम लगाती है, हम इंस्टेंटली पे करते हैं ट्रस्ट मॉडल में। उस चाहे यहाँ का हॉस्पिटल है, चाहे दिल्ली का है, चाहे कहीं का भी है, हम इंस्टेंटली पेमेंट करते हैं बजट से। उसके बाद हम ट्रस्ट मॉडल से गवर्नमेंट जो है उसको रियम्बर्स करती है। तो हर आदमी जो है लद्दाख का वो 5 लाख से इंश्योर्ड है, और उसमें कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं आता, ऐसा कोई प्रोस्थेटिक नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आप ले नहीं सकते 5 लाख से। और 5 लाख से ऊपर 15 लाख तक भी अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को आप कहते हैं कि यहाँ पैसा लगा, तो सरकार देती है। मैंने खुद 10-10 लाख रुपया दिया है लोगों को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसा जहाँ तक है सरकार आपके साथ है। पैसा कभी भी उस रास्ते में नहीं आएगा। आपकी हेल्थ के या आपको कोई अगर ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए सरकार पैसे का अरेंजमेंट करती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी स्कीम शुरू की है कि कोई भी शख्स अब उसको अपना ना माल बेचना पड़ेगा, ना उसको अपना कोई लोन लेना पड़ेगा। 5 लाख तक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और उसके बाद मैंने कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो 10 लाख तक एडिशनल दे सकता है। तो ये इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ लद्दाख में आ रही हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं हमको, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपर्टीज़ की कमी है। दूर दराज के इलाकों में एक्सपर्ट्स कम होते हैं, क्योंकि सर एक हाईली क्वालिफाइड आदमी भी चाहता है कि मुझे मिनिमम इतने पेशेंट तो मिले मेरी ब्रांच के, अदरवाइज तो मेरी स्किल खत्म हो जाएगी। यहाँ पे तो एक पेशेंट भी नहीं है मेरे ब्रांच का। तो जाहिर बात है बड़े बड़े डॉक्टर्स, हमारे अपने बच्चे भी नहीं आना चाहते। वो कहते हैं यहाँ तो वो चीज़ है ही नहीं, वो पेशेंट आते ही नहीं है हमारे पास। कैंसर का एक इशू जो है सर, जो बार बार हमारे यहाँ आ रहा है कि हमारे यहाँ पे तेज़ धूप के कारण एक तो आँखों का इशू है, कैटरेक्ट जल्दी हो जाता है क्योंकि धूप इतनी तेज़ है, और दूसरा एक्सपोजर है, सिलिका है, कुछ एस्बेस्टोसिस का है, कुछ सिलिकोसिस के कारण है, और कुछ हमारे डाइट्स के कारण शायद कुछ पेट में भी हमारे जो ग्रोथ्स वगैरह जो हैं वो अब ज़्यादा संख्या में नोटिस में आ रही हैं। तो एक सर्वे हो सर्वाइकल कैंसर का और ब्रेस्ट कैंसर, सर दोनों प्रिवेंटिबल हैं। ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंटिबल है अगर अर्ली डिटेक्शन हो, अगर लंप को आप डिटेक्ट कर पाएँ या मेमोग्राफी से या इवन हैंड से भी, तो वो जल्दी अगर उसका इलाज करेंगे तो 100% क्योरेबल है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है सर जो कि एक वायरस से होता है और प्रिवेंटिबल है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रिवेंटिबल कैंसर तो कम से कम हमारी बच्चियों को जो 9 से 13 साल की हैं, लगभग 10-12 हज़ार बच्चियां हैं, हम एक फेज्ड मैनर में सबको सर्वाइक्स का जो है वैक्सीनेशन कर देता है। हमारी बच्चियां जब ये जवान हो तो ये प्रोटेक्टेड रहे सर्वाइकल कैंसर से, जो कि प्रिवेंटिबल है। जहाँ तक मेमोग्राफी से जो आप ये काम शुरू करने जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन सर हमने एक अलग से स्कीम बनाई है कि वो पोर्टेबल मेमोग्राफी मशीन है। हम हर आशा वर्कर को ट्रेन करेंगे, वो मशीन उसको देंगे, वो जगह जगह जाके लेडीज़ को जो है वो स्कैन करेगी और उसका डेटा कलेक्ट करके हम देखेंगे कि कोई लेडी जो है वो कहीं इस तरफ तो नहीं जा रही है, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल है। अर्ली अगर लंप छोटा है निकाल दिया तो लेडी नॉर्मल है टोटली, लेकिन अगर 4th स्टेज में चलेगा तो फिर ये भी जानलेवा बन जाता है। तो जितना प्रिवेंटिबल है वो हम करने की कोशिश करेंगे। हेल्थ का स्टाफ जो है, हेल्थ के डॉक्टर्स जो हमारे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन है। इस डिफ़िकल्ट
जो है सिचुएशन में भी वो इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जो भी बाहर से आता है सर, चाहे वो टूरिस्ट आता है, वो कहता है जी इतनी हमारी केयर इन्होंने की, इतने हमारी जान खतरे में थी, उन्होंने बचाई। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है, ये अपना धर्म जो इसी तरह से निभा रहे हैं। तो इस ओकेजन पे सर मुझे ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया, और क्योंकि हमारा मकसद एक है, गोल एक है, तो आप भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है और हम लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने में कामयाब होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। आपकी बातें हमारे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को प्रेरणा देगी और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे यूटी लद्दाख के सांसद श्री हनीफा जान से कि वो स्टेज पे आके अपने ज़र्रीन ख्यालात से लोगों को आगाह करें। थैंक यू सर। ऑनरेबल चेयरमैन श्री डॉक्टर जाफर रहमान साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री पवन पुतोहल जी, हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आका शेख नाज़िरुल महदी प्रेसिडेंट जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया कारगिल, डीसी साहब, एसपी साहब, सीएमओ साहब, हमारे यहाँ हाजी हुसैन साहब बैठे हैं, ऑनरेबल काउंसलर्स, यहाँ के सुपरिटेंडेंट मेडिकल साहब, हमारे यथार्थ हॉस्पिटल से तशरीफ़ लाए हुए हमारे डॉक्टर्स, यहाँ पे तशरीफ़ रखे हुए हमारे हॉस्पिटल के करगिल के जाने माने डॉक्टर्स, अरज़ा के वॉलंटियर्स और डॉक्टर्स, सबको अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्कार। मैं सबसे पहले श्री ऑनरेबल एलजी साहब का, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का मैं बहुत ही मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और यथरात के हमारे डॉक्टर और उनकी पूरे टीम का मैं इस्तेमाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और पूरे करगिल के अवाम की तरफ से इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक ऐसे इश्यूज़ के ऊपर, ऐसा एक सेक्टर को लेकर यहाँ पे ये जो कैंप के इनक़ाद किया है, जो कि मैं समझता हूँ लद्दाख में आज की डेट में सबसे एक बहुत बड़ा एक गंभीर मसला है। पिछले 2-3 महीनों में मैंने ख़ुद देखा है अपने रिलेटिव्स में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दिन का जो कैंप है, और मैं खुशी की बात ये भी है कि मैंने सोच रहा था कि ये एक दिन का कैंप है, जो स्क्रीनिंग कैंप है, लेकिन कल जिस तरीके से हमारे अरज़ा के ऑफिस में जो स्टेलाइट क्लिनिक का जो इनक़ाद किया, और वहाँ पे हमें बताया गया कि इसमें स्टेलाइट के ज़रिए यथार्थ हॉस्पिटल के जो माहिर डॉक्टर्स हैं उनके साथ बैठ के यहाँ पे जो है लोगों को कंसल्ट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसके लिए मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब शेख नाज़िरुल महदी साहब, अरज़ा के पूरे टीम और यथार्थ हॉस्पिटल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ ख़ासकर जो कैंसर का जो स्क्रीनिंग है, ये सर ये एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के भी उस नोटिस में लाना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम रेशियो देखा जाए तो ये पूरा देश में मुझे लगता है सबसे बड़ा गंभीर मसला आज लद्दाख में बने हुए हैं सर। क्योंकि मैंने ये झेला है पिछले 3 महीनों में। मेरे अपने रिलेटिव्स में ऐसे 3 शख्सियत थे जो नॉर्मल टेस्ट के लिए गए थे कश्मीर, और वहाँ से वापस आए, उनको कैंसर डिटेक्ट होके। तो इस तरह के बहुत सारे केस है। इसलिए ये स्क्रीनिंग वाला जो आज इन्होंने एक कदम उठाया है, ये मैं समझता हूँ धीरे धीरे पूरे जितने भी हमारे पॉपुलेशन है पूरा कवर अगर हो जाए तो ये पता चले कि किसको कितना क्या गंभीर मसला है, शुरुआत में क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है। जमीयतुल उलमा के बारे में थोड़ा मैं यहाँ बताना चाहता हूँ सर। ये इदारा इस पूरे रीजन का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एक इदारा है, और
इस इदारे के जो इस रीजन के प्रति, न सिर्फ करगिल डिस्ट्रिक्ट की बल्कि पूरे लद्दाख रीजन के प्रति इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो उस वक़्त के जो हमारे बुज़ुर्ग उलमाए हैं जिन्होंने अपने पूरे जो ज़िंदगी के आधे हिस्से जो आधा हिस्सा अपने दीनी तालीमात के सिलसिले में देश से बाहर उन्होंने जब सर्व किया, उसके बाद हालांकि उस वक़्त इन उलमाओं का जो इकोनॉमिकल कंडीशन इतना भी नहीं होते थे, वो गुजारा करके वहाँ पे जाके पढ़ के फिर जब यहाँ आते थे, यहाँ आए तो यहाँ के हालात, यहाँ के गुर्बत, यहाँ के जो फार फलां एरियाज़ का जो मसाइल है उनको देखते हुए उन्होंने इस इदारे के तश्कील दिए। और बावजूद इसके कि अपने ज़िंदगी के आधे हिस्सा अपने फैमिली, अपने घर बार से दूर बैठ के उन्होंने अपने तालीम हासिल करने के बावजूद भी यहाँ पे आके भी अपने घर बार को छोड़ के वो करगिल डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में इस इदारे का तश्कील दिया। और इस इदारे का तश्कील एक जो मजहबी इसके लिए तबलीगात के लिए ये शुरुआत किया था, लेकिन यहाँ का हालात, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी के हालात को देखते हुए उन्होंने न सिर्फ जो मजहबी जो चीज़ें हैं बल्कि सोशली इवन आपको पॉलिटिकली अगर मैं कहूँ इस करगिल डिस्ट्रिक्ट खासकर यहाँ पे जितने डेवलपमेंट हुआ है, जितने हद तक डेवलपमेंट हुआ है उसमें सब बहुत बड़ा हाथ जो है इस इदारे का है सर, इस इदारे के उस वक्त के उलमाओं का है। इस इदारे का सबसे बड़ा एक ये है सर हमारे उस वक्त ये उलमाओं का कि इस रीजन को कम्युनल हार्मनी, पीस, अमन जो आज देश भर में मेरे ख्याल से हमें फ़ख्र है कि देश भर में हमारे लद्दाखियों को जाना जाता है ईमानदार, अमन पसंद और जो भाईचारगी में हमको आज मिसालें मिलते हैं, ये सब क्रेडिट जो है उन वक़्त की उन उलमाओं को जाता है सर। उस उलमाओं का ये कारण है कि आज पूरे लद्दाख में एक देशभक्ति का जो भावना जो आज हमारे लोगों में है, ये उनकी देन है, उन उलमाओं की देन है। कम्युनल हार्मनी का जो एक भावना जो इस रीजन में है सर, ये उन उलमाओं का देन है जिन्होंने अपने ज़िंदगी, अपने फैमिली, अपने घर बार छोड़ के लोगों के खिदमत में जो है पूरा अपना ज़िंदगी गुजारा है। और उनके उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए मैं फ़ख्र से कहता हूँ हमारे जो आज के जो प्रेसिडेंट हैं शेख नाज़रुल मेहदी, इनका जो डायनेमिक जो एक लीडरशिप है सर, उन्होंने उसको बहुत आगे लेके गया। और आज इस इदारे में हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इवन हमारे इन्वायरमेंट को देखते हुए जो हालात आज जो चिंतित हैं हम अपने इन्वायरमेंट को लेके, उसको देखते हुए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शेख साहब को। इन्होंने इस इदारे में एक अलग जो ब्रांच जो है इस इन्वायरमेंट के उसमें इन्होंने खोला है। और पिछले साल चीफ सेक्रेटरी साहब को तो पता है सर, 1.5 लाख से ऊपर का प्लांटेशन जो है इस करगिल में ड्राइव चलाया, ये अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। आज इसी के तहत अर्रिज़ा जो ब्रांच है इसमें हेल्थ सेक्टर है, अर्रिज़ा का टीम में इनको सल्यूट करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि न सिर्फ हेडक्वार्टर पे हर साल इस तरह के कैंप्स माहिर डॉक्टरों को देश भर से बल्कि विदेश से भी ला के यहाँ पे लोगों का मुफ्त इलाज तो करते ही है, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट के फार फलां एरियाज़ में मेरे ख्याल से रिकॉर्ड होगा कि कोई जो है हेल्थ कैंप उन इलाकों में डोर स्टेप पे जाके हेल्थ कैंप का इनकाद किया। जैसे हमारे इचुपंगवर जैसे जंस्कार जैसे एरियाज़ में ये लोग जाते हैं जहाँ पे गाड़ी भी नहीं पहुँचता है, पैदल जाके ये लोग कैंप का इनकाद करते हैं। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद भी है कि आगे भी जो है हमारे कौम की खिदमत में आप लगे हैं। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो लोकल डॉक्टर्स हैं, मैं उन सब को का शुक्रिया अदा करता हूँ, सराहना भी करता हूँ सर कि अपने ड्यूटीज़ के अलावा जितने भी छोटा सा अगर इनके पास वक्त मिलता है वो अपने कौमी खिदमत में जो है ये लोग सर्व करते हैं। जबकि आप आज की दुनिया में अगर देखेंगे, इंसान के पास अगर थोड़ा वक्त मिलता है तो अपने कमाई का ज़रिया जो है ढूंढते हुए नज़र आते हैं। इस दौर में भी हमारे डॉक्टर्स मैं सल्यूट करता हूं इनको कि जब भी इनके पास थोड़ा वक्त मिलता है, इनके ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके ज़रिए जो है कौम के। हनीफा जान जी, रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख डॉक्टर पवन कोतवाल,
President Jamiatul Ulama, Sheikh Nazirul Mehdi Muhammadi, Wardi DC, Rakesh ji, SSP Kargil Shri Ram ji, Honorable Councillors, ADC Kargil, esteemed doctors from Yatharth Super Specialty Hospital, Noida, हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, रिटायर्ड डॉक्टर्स, बाकी जितने पैरामेडिक्स यहाँ पे बैठे हैं, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जिले। चूँकि टाइम बहुत कम है, मैं सिर्फ 2-3 चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा सर। सबसे पहले जैसे आपने कहा MRI के लिए हमारे यूटी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया, उसमें एक किस्म का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। पहले हमने 1.3 लाख का लिया था, हमारे लिए अच्छा हो गया और बहुत बार कैंसिल होते होते हम अब मॉडर्न वाले पे 3 टेस्ला पे पहुँचे। उसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी सर जो पहले एडवाइज़र के नाम से जाने जाते थे, और हमारे एक्स LG साहब और हमारे जो एक्स हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर साहब थे, उन सब की कोशिशों से और आपके अभी फ़ंड रिलीज़ कराने में सर आपने का भी बहुत बड़ा रोल है। हम आपकी और यूटी गवर्नमेंट के पूरा शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने ये जो हमारे लिए एक सपना था वो पूरा होने जा रहा है। जहाँ तक बिल्डिंग का आप बता रहे थे सर, ये बिल्डिंग वाकई में हमारे लिए खूबसूरत बिल्डिंग बना है, जिसमें हमारे बहुत अच्छे डेडिकेटेड डॉक्टर्स, डेडिकेटेड पैरामेडिक्स काम करते हैं। मैं आपको बताऊं तो हमारे ये RNB वाले बड़ा इसके जो बाहर वाले कंपाउंड वाली को ना बहुत बड़ा ऊंचा कर रहे थे, फिर मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा हमारे करगिल में दिखाने के लिए ही अच्छा बिल्डिंग है, आप उसको भी छुपा रहे हो। फिर जाके उन्होंने आधा कम कर दिया। मतलब मेरा कहने मतलब सर ये बहुत अच्छा एक बिल्डिंग बना है। तो बिल्डिंग ही नहीं है, हमारे यहाँ पे सर्विस भी उतना अच्छा है, खूबसूरत है सर, जितना बाहर से बिल्डिंग हमें दिखाई देता है। जहाँ तक हमारे कुछ रिक्वेस्ट है सर, जैसे हमारे MP साहब ने भी कहा कि डॉक्टरों की कमी तो हम सब जानते हैं, तो इंशाल्लाह जो हमारे मेडिकल ऑफिसर उनका तो जल्दी हमारा कमी पूरा होगा सर। हमारे NHM में जैसे ले में आपने दिया है सर कार्डियोलॉजिस्ट और एक यूरोलॉजिस्ट वगैरह, और उसमें हमें ये न्यूरोलॉजिकल ये सर न्यूरोलॉजी में एक सर्जन चाहिए सर सुपर स्पेशलिटी का, जो खासकर हमारे लिए करगिल में ऐसा है। करगिल आप जानते हैं ले से भी 230 किलोमीटर के आसपास है, और करगिल श्रीनगर से भी 205 किलोमीटर। तो हमारे लिए सर ये प्राइमरी केयर यूनिट भी है हमारा अस्पताल, सेकेंडरी भी और टर्शरी केयर यूनिट, खासकर सर्दियों में। तो इस वे टू अवमेंट सर। फिर कुछ डिमांड आपको आप लोग जानते हैं कि हमारे जो 100 बेड है सर, 1979 में जितने आपके बेड्स जितने आपके स्टाफ सेशन हो गए थे 1979 के बाद, सिर्फ सर 2011-12 में जब आपके यहाँ पे ट्रामा अस्पताल आ गए थे, उसमें 10-20 स्टाफ इंक्रीज़ हो गए थे। उसके बाद बिल्कुल भी 1979 से जब से अस्पताल बना है तब से स्टाफ स्ट्रेंथ वही है। तो आप लोगों से गुजारिश है कम से कम सर 200 बेड का ही अस्पताल होना चाहिए। और साथ में हमने एक यहाँ पे हमारा AMT स्कूल है, उसको हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। वो NHM में एक प्रोग्राम भी है, उसके हिसाब से AMT स्कूल को एक कॉलेज नर्सिंग कॉलेज बनाने का, उसमें भी आप लोगों का मदद की ज़रूरत है सर। फिर और जहाँ तक हम ये ह्यूमन रिसोर्स का हमने कहा सर, उसमें बहुत सारी जगहों पे हमें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नहीं, बहुत सारी जगहों पे ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। और सर और एक चीज़ हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है सर, अगर हो सकता है तो हम चाहते हैं एक मिनी एम्स। हमारे आज के मुख्य अतिथि हिज एक्सेलेंसी श्री कविंदर गुप्ता जी से गुजारिश करूंगा कि आप डाइस पे आके आज के इस फंक्शन पे अपना प्रकाश डालें। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में प्रमुख रूप से उपस्थित डॉक्टर मोहम्मद जफ़र अकूम साहब, जो हमारे CC हैं लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के, और पवन कोतवाल जी हमारे IAS चीफ सेक्रेटरी, श्री मोहम्मद हनीफा जान जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट, श्री राकेश कुमार जी IAS हमारे डिप्टी कमिश्नर, श्री राम राघवन जी IPS SSP कारगिल, शेख नज़ीरुल मेहंदी प्रेसिडेंट जमाल अशना अशरिया कारगिल से, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स,
काउंसलर्स, डॉक्टर लियाकत CMO कारगिल, डॉक्टर पवन कुमार सिंह ग्रुप डायरेक्टर यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा से, डॉक्टर कनुज मलिक सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, यहाँ से हमारे उपस्थित कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के वॉलंटियर्स और अल रज़ा हेल्थ केयर रिसर्च फाउंडेशन कारगिल से हमारे सभी उपस्थित नर्सिंग स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हमारे कर्मचारी। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस कैंसर जांच जागरूकता कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। ये शिविर जो बताया गया कि अल रज़ा हेल्थ केयर और रिसर्च फाउंडेशन कारगिल द्वारा यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन स्वास्थ्य विभाग कारगिल के सहयोग से जो आयोजित किया जा रहा है, इसका नेतृत्व यथार्थ टीम के पवन कुमार सिंह जी कर रहे हैं। जो ग्रुप डायरेक्टर हैं डॉक्टर कनुज मलिक सीनियर कंसल्टेंट हैं, वो भी यहाँ पर आई हैं। इस कार्यक्रम का एक अपने आप में महत्व है। मुझे जो पहले बताया गया कि लद्दाख में इस प्रकार की जो डॉक्टर पवन कोतवाल जी ने बताया कि इस प्रकार की यहाँ की धूप के कारण से, यहाँ से और कारणों से यहाँ पर जो कैंसर लोगों के बीच में आता है, तो उसका शुरू से ही स्क्रीनिंग और इलाज किया जाए तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। इसलिए जो लद्दाख की हमारी जो टीम है, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, मैंने देखा कि काफ़ी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो इस चीज़ को हम जड़ से ख़त्म करें, इसके लिए अल रज़ा का तो एक अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है ही, लेकिन स्थानीय डॉक्टर जो सेवा भाव से यहाँ पर काम करते हैं तो उनके अभी मैं सराहना करता हूँ। ये अपने आप में एक परिवारों को तो बचाता ही है, आशा जगाता है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम करें, इसके लिए एक बहुत ज़रूरी है। जो आज की निःशुल्क यहाँ पर जांच कार्यक्रम चल रहा है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है बहुत से लोग इसका लाभ भी उठा पाएंगे। और क्योंकि सुपर स्पेशलिटी यथार्थ जो एक गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे लोगों को उसका लाभ मिले। कैंसर स्क्रीनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआती चरण में ही अगर इसका इलाज कर लिया जाता है तो मुझे लगता है उसका फ़ायदा रहता है। नहीं तो हम नित्य प्रति देखते हैं जिस प्रकार से हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब बता रहे थे कि किस प्रकार से जब शुरुआत में ये चीज़ें नहीं पकड़ी जाती तो वो लोग जो हमारे रिलेटिव भी रहते हैं, हमारे साथी रहते हैं, वो हमको छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए विशेष करके इस प्रकार की जो जानलेवा बीमारी है उसको शुरू से ही हम अगर पकड़ें तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा हो सकता है। यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है जीवन के लिए आज जो कैंप लगेगा जीवन के लिए आशा जगाने में मदद करेगा। और जो क्लिनिक में जो बताया गया कि अल रज़ा कार्यालय कातिलगाह में अपने सैटेलाइट क्लिनिक जो स्थापित किया है, जो कारगिल ज़िले में रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। अब हम डॉक्टर किसी रोगी में कैंसर रोग का पता लगाने और निदान में संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ द्वारा आसानी से परामर्श कर सकते हैं। यह एक अच्छा कदम है। मैं निश्चय ही आने वाले समय में ये लद्दाख और कारगिल के हमारे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसके अलावा अल रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन इस सहयोग को प्राप्त करके प्रसन्न है, क्योंकि यह संगठन 2017 में स्थापना के बाद से नियमित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है ताकि समाज के योग्य वर्ग को लाभान्वित किया जाए। इस संगठन को उद्देश्य और लक्ष्य जो नीचे बताए भी गए हैं, और अलग अलग से कैंपों का आयोजन करना, गरीब लोगों का मदद करना, जिला अस्पताल में कारगिल के रोगियों के लिए नियमित रूप से रक्तदान शिविर वगैरह इस प्रकार के जो कार्यक्रम लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि धार्मिक संस्थाओं का एक अपना महत्व रहता है, और अल रज़ा जिस प्रकार से काम कर रहा है इसके लिए मुझे लगता है कि ताली बजाने की ज़रूरत है। तो आगे से भी इसी प्रकार से समाज में काम करते रहें तो मुझे लगता है कि कारगिल को बहुत फ़ायदा हो सकता है। और जब भी यहाँ जो MRI मशीन की बात की गई थी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमारे पूर्व जो LG साहब है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
तो जो मेरी जानकारी है कि वो मशीन श्रीनगर पहुंच चुकी है और जल्द ही यहाँ पर आकर के वो इंस्टॉल होगी, तो उसको लोगों का फ़ायदा होगा। और भी जो हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल की जो बात 200 बेड के लिए की गई है, उसके लिए ऑलरेडी हम इसके लिए प्रयासरत हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्थ की सुविधा है जो हमारे कारगिल और लद्दाख में मिले, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हुआ कि आपने जो आयोजन किया है, मैं डॉक्टर्स का, अलरजा का, सभी जो यथार्थ हॉस्पिटल का सभी का धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। मुझे भी कुछ डॉक्टर्स ने जम्मू से भी ऑफ़र की थी जो कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में हैं या न्यूरो के क्षेत्र में हैं। हम ये भी प्रयास करेंगे उनको महीने में 1-2 दिन यहाँ पर ला करके भी वो अपने मर्जी से यहाँ पर आना चाहते हैं, तो हम उसको उनका सहयोग अगर ले पाएँ तो मुझे लगता है कि हमारे कारगिल के लिए बेहतर होगा। और नामी डॉक्टर हैं वो, तो एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये आयोजन जो आज का जो कैंप है वो सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग लाभ उठा पाएँ। आगे से भी इसी प्रकार आप सेवा कार्य में लगे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुफ़व्विज़ अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। वक़्त की कमी की वजह से मैं इंशाअल्लाह बहुत ही मुख्तसर अल्फाज के साथ आप लोगों का अलविदा करता हूँ। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हमारे इस दावत पे। अल-रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे लिए बाइस से मुसर्रत है और हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप जैसे शख्सियात आके इस प्रोग्राम को रौनक बख्शना, और साथ ही हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब पवन कोतवाल जी और हमारे सीसी साहब, एमपी साहब और हमारे डीसी साहब, एसपी साहब और हमारे यात्रा के डॉक्टर साहिबान और बाकी काउंसलर्स और यहाँ सीमो साहब, बाकी हमारे डॉक्टर साहिबान, आप सबका बहुत ही मशकूर, बहुत ही ममनून हूँ, बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। आज का हमारी ये प्रोग्राम करगिल में एक वाहिद प्रोग्राम है जो आज तक नहीं हो पाया था। कैंसर का ये स्कैनिंग प्रोग्राम जो है आज के बाद इंशाअल्लाह हमारे अल-रज़ा हेल्थ केयर और यात्रा हॉस्पिटल स्पेशल हॉस्पिटल के ताउन से जारी व सारी रहेगी। इस तरह के प्रोग्राम हमारे पब्लिक के लिए, आवाम के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। जैसे कि हमारे सभी मेहमानान अजीज़ ने यहाँ आकर कहा, इस तरह के प्रोग्राम हमारे लिए हर साल अल-रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के तहत होता रहता है और होना भी चाहिए। मैं आज के इस प्रोग्राम में हमारे एलजी साहब से बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये जो हॉस्पिटल यहाँ पर खड़ा है, इसका असली नक्शा जो है दोनों तरफ से सेम, इस तरफ भी एक बिल्डिंग था, उस तरफ भी एक बिल्डिंग था, और इस हॉस्पिटल का सिर्फ एक ही बिल्डिंग यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस हॉस्पिटल का जो असली नक्शा है उसके उस साइड में भी सेम इसी तरह एक बिल्डिंग है, ताकि इस हॉस्पिटल का असली जो स्ट्रक्चर है वो सामने आ जाए। उसमें इस चीज़ को हज़फ किया जाए और इससे हमारे आइंदा आने वाले दिनों में पब्लिक के लिए एक बहुत अच्छी सहूलियत फराहम की जा सकती है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए बहुत बातें थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं बहुत ही
अपनी बातों को समेट रहा हूँ, बहुत ही कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब, सीसी साहब, एमपी साहब और हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, बाकी मेहमानान अजीज़ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की वजह से हमारा आज का ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Shukriya Sheikh Sahab. As a token of love and respect, we now move to present our esteemed guests with presentation of mementos. For that, I would like to request President Jamiatul Ulama Isnea Sharia Kargil, Janab Sheikh Nasir Al Mehdi Mohammadi and Dr. Pawan Kumar Singh, Yatharth Hospital, to present mementos to our Honorable Lieutenant Governor Shri Kavinder Gupta Ji and Chief Secretary Dr. Pawan Kotwal. Thank you, sir. With that, I would like to request His kind self, Honorable Lieutenant Governor Shri Kavinder Ji, to present mementos to our Member of Parliament, Haji Hanifa Jan. Chief Executive Councillor Dr. Jafar Akhund, worthy Deputy Commissioner Shri Rakesh Kumar, SSP Kargil, doctors of Yatharth Super Speciality Hospital are also presenting a shawl to worthy Deputy Commissioner and SSP Kargil. Yes, sir, to come here for the mementos. On behalf of Yatharth, on behalf of Al Riza Health and Research Foundation, a memento is presented to Yatharth Super Speciality Hospital. I would like to call Dr. Pawan and Dr. Kanuj. Thank you. Obviously.